आपके एक्सपीरियंस में एडिक्शन को लेकर ऐसी हम्म, कौन सी मिथ्स हैं जिनको लोग बहुत कॉमनली बिलीव कर लेते हैं? विल पावर के ऊपर है। ये बिल्कुल विल पावर वाली चीज नहीं है। विल पावर है, पीने का है, लेने का है, ड्रग्स लेने का विल पावर है, छोड़ने का तो बिल्कुल नहीं है। तो डिजीज है ये। फैमिलीज को भी हम समझाते हैं कि आप कॉज नहीं है, आपकी वजह से नहीं लिया जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आप क्योर भी नहीं है। वीड तो कैनबिस तो इनको लगता है कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो मेरे पास इतने केसेस क्यों आ रहे हैं हेलुसिनेशंस के या वॉर्प्ड थॉट प्रोसेस के? तो वो भी सब्सटेंस है, वो आपकी लंका जला ही देगा। Robert Downey Jr. says one thing: it is that one decision which I was lacking. I was repeatedly going to rehab, seeking help, was caught by the police, did whatever. But in the end, it is that one decision that matters, that not from today. I will not be touching it, not using it. What did I do with my own self? Once they Hmm. get that, once they realize that aspect, that there comes a understanding that not anymore. Hello, Sassy Nari. Welcome to Little Fixes, where we are not trying to fix everything, just the stuff that's getting on our nerves at the moment. So, it's real talk about mental health, messy emotions, and figuring out how to show up. One tiny, doable thing at a time. Because life's a lot, and so are we. Addiction. It's one of those words we whisper, judge, or just try to avoid. But it's closer than we think. Maybe in a friend, a partner, a parent, or maybe even in ourselves. So, whether it's alcohol, drugs, or that little bottle of pill we keep just in case, addiction doesn't always look like the stereotype. It's smart, it's sneaky, and it can happen to anyone. In today's episode, I am joined by someone who knows this world inside out. Vandana Hiranandani is the founder of Anatta Human University, a luxury residential rehabilitation center specializing in holistic, client specific, and non medical approaches to recovery from addiction to drugs, alcohol, and other substances. We are digging into the real reasons people get hooked, what recovery actually looks like, and how to help someone you love without losing yourself in the process. No shame, no fluff, just real talk about a topic more of us need to understand. Please help me bring more such conversations to you. Subscribe to Little Fixes on YouTube and follow us on your podcast app. Hi, Vandana. Welcome to Little Fixes. Hi, it's a great opportunity, and thanks for inviting me for this podcast. I'm really looking forward to doing this with you and your team. So, Vandana, let's start with your story. Mhm. Why did you start Anatta? The story goes very back, totally towards my childhood, where once upon a time in a college workshop, I wrote, I want to help alcoholics. Why did I write that? Because why did I write that? Because before that, my dear dad and my chacha, we were living in a joint family. They would drink quite a bit. They were loving people, extremely nice people. But yes, alcoholism didn't spare them, and the physical issues, the body issues, or even the financial hassles, emotional behavior, which would go haywire here and there, also was part of their disease, which then I didn't know it's called a disease or it's even called alcoholism. It was just called a very, very bad habit creating issues. And they being nice people, why are they not getting it? Unfortunately, my dad passed, but and midway, as I told you earlier, I wrote, I want to help alcoholics. And 2 months, I was married to my husband, my partner, who turned out to be an alcoholic too. And with God's grace, in the 8th year of our married life together, he looked at help. He went to a center. And today, with God's grace, again, he is 22 years sober. And he's the one who started this company, Anatta University. Anatta is a favorite word of his. He found it somewhere in Sanskrit books. And the meditation center that he went to take more training, make him more sound, where his sobriety as well as his inner character defects or traits are concerned, which he wanted to improve on. And he got the name from there, and that's where it started. The inception was done on December 1st, 2004. I was nowhere in the picture at that time. While all this was happening, I was still overloaded with a lot of sadness and irritation. Though I'm seeing the color of sobriety, I was still irritated. And then when I took therapy,
So our mentor is common, his and mine, Dr. Rajiv J. Rajani, who's part of our team. He is the one who pushed me into working for Anatta, and I was invited into it so that I can help the spouses mainly and the family, because a new platform is required for an alcoholic when he returns back from a center or any therapy that he's gone for. A new platform is required where the spouse and the family should understand why is this called a disease. It is just not a regular problem we are dealing with. It is bad habit. Mm-hmm. It's creates a lot of issues. But what is the disease? Why do they suffer so much? Why do they react this way? And what we Mm-hmm. should do and not do is where I entered the scene, and I started helping in Anatta, and today I'm a major part of it. I love being a very, very pivotal person in this whole industry of ours. And we also started it in a very different color. It's a luxury rehab compared to the other ones. It is where a person comes in voluntary. Medicines are not pumped into a person, and you're living in a house. So we become your new family. We take care of you with dignity and a lot of compassion and respect. Mm-hmm. Wow, that is wonderful. And because Vandana, you have been working with the addiction in this Yeah. rehab for so many years, Hmm. तो आपके एक्सपीरियंस में एडिक्शन को लेकर ऐसी Hmm. कौन सी मिथ्स हैं जिनको लोग बहुत कॉमनली बिलीव कर लेते हैं? पहली बात तो वो सोचते हैं कि इसको विल पावर बहुत है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं लगा रहा है या लगा रही है, बिकॉज इट्स Mm-hmm. नॉट Yes. इट्स नॉट अ डिजीज विच चूजेज अ सेक्स, इट्स फॉर बोथ ऑफ द पीपल, जिसको ये पकड़ लेती है बस पकड़ लेती है, तो ये विल Hmm. पावर इशू नहीं है, बिल्कुल ये डिजीज है। Hmm. डिजीज का ये भी मैं जोड़ूंगी इसमें कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। कई बार ऐसा होता है, मुझे भी कहा गया था कि शादी के बाद पी रहा है। शादी के बाद नहीं पी रहा, अगर शादी नहीं होती तो भी पी रहा होता या पी रही होती, बट प्रोग्रेसिव है तो एज के अनुसार चलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपकी एज बढ़ेगी और आपने अच्छा। अपना ग्लास पकड़ा हुआ है तो ये भी बढ़ेगा, ये आपको छोड़ेगा नहीं। अभी इसमें नंबर ऑफ पेग्स नहीं है, आप 2 लीजिए, आप 4 लीजिए, आप 20 लीजिए। आप पीने के बाद या ड्रग्स लेने के बाद आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर क्या है, ये उस पे लागू करता है। तो अनमैनेजेबिलिटी क्या सेट हो जाती है आपकी ज़िंदगी में, उस पे ये करता है। तो मिथ बड़ा ये है कि ये विल पावर के ऊपर है, ये बिल्कुल विल पावर वाली चीज़ नहीं है। विल पावर है, पीने का है, लेने का है, ड्रग्स लेने का विल पावर है, छोड़ने का तो बिल्कुल नहीं है। तो डिज़ीज़ है, तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो मिथ टूट ही जाएगा। दूसरा मिथ ये रहेगा मैत्री कि अगर फैमिली इनके लिए प्यार करे, इनको इनके लिए सैक्रिफाइस करे, इनके आगे पीछे घूमे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ये Mm-hmm. ऐसा नहीं है। अगर ये बंदा या बंदी अपने आप सोचे कि ये तकलीफ दे रहा है मुझे, जो मुझे मज़ा दे रही थी अब सज़ा है, व्हाट वाज़ प्लेज़र वन्स अपॉन अ टाइम इज़ पेनफुल नाउ, आई वेक अप विद रिमोर्स एंड गिल्ट, तब जाके ये फैमिलीज़ को भी हम समझाते हैं कि आप कॉज़ नहीं हैं, आपकी वजह से नहीं लिया जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आप क्योर भी नहीं हैं, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। तो मिथ ये है कि आप कितना भी प्यार, दुलार, थ्रेट, जो भी इमोशन यूज़ करना चाहते हैं आप करिए। जब बंदे को समझ में आएगा, ये ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल प्यार, दुलार या थ्रेट ज़रूरी नहीं है। हाँ। आपका उनके आस-पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्मफुल अपने लिए ही हार्मफुल हो जाते हैं। तो वो आई एम Mhm. अवेयर, आई एम देयर फॉर यू, आई स्टिल लव यू, बट आई लव यू फ्रॉम अफार एंड इंटरमिटेंटली आई बिलीव इन द पुश पुल थ्योरी। पुश करिए कि इसकी हेल्प लीजिए, फिर रुक जाइए, पुल आउट कर लीजिए, फिर वापस शुरू करिए, तो डोंट गिव अप ऑन देम कंप्लीटली। बट येस, द डिसीजन विल बी द पर्सन्स दैट आई नीड हेल्प। तीसरा मिथ ये बोलूँगी कि अगर कोई ठीक भी हो जाते हैं, सोबर हो जाते हैं और गलती से अगर स्लिप या रिलैप्स हो गया, मतलब वापस लेने लगे, स्लिप छोटी बहन है रिलैप्स की। स्लिप आप 1-2 बार करेंगे, अगर डर गए तो आप रुक जाएँगे। रिलैप्स फुल ब्लोन हो सकता है, जैसे आप पूरा हफ्ता, महीना, शायद 1 साल भी पी रहे हो और फिर आप काउंसलर को या आपकी फैमिली काउंसलर को कॉन्टैक्ट करती है। तो रिलैप्स फेलियर नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आप खाली समझ जाइए कि ये आपके लिए नहीं है। एक ज़माने पे आपके लिए ड्रग्स और अल्कोहल ये काम करता था, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता था, आपने बड़े-बड़े बिज़नेस डील्स करे होंगे, आप बहुत सारे डेट्स पे गए होंगे और वो अभी काम नहीं कर रहा। सो व्हाटएवर वाज़ वर्किंग फॉर यू इज़ नो मोर योर थिंग। दैट्स वेयर यू गेट इट दैट इट्स नॉट फॉर मी एनीमोर। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड। सो Okay. येस। So thank you for clearing these myths, Vandana. Now I want to understand कि फैमिली की वजह से नहीं है, ये एक डिजीज़ है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? चाहे वो अल्कोहल एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो और इवन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन का एडिक्शन।
तो इसकी शुरुआत वंदना कहाँ से होती है? एक तो अगर आजकल का बोला जाए तो पीयर प्रेशर है, इन्फ्लुएंस है, ओटीटी का, सिनेमा का, बड़े हमसे बड़े जो लोग हैं उनका, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएँ कि चलो ले लिया, लेकिन रुक भी जाता है किसी-किसी का डर के मारे, फैमिली के चलते, पैसों के चलते, फाइनेंस नहीं हो किसी के पास खरीदने के लिए, या तो रुक जाता है या वो ही पुशर या पेडलर बन जाते हैं। वो दैट इज़ अनदर फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, यू नो। बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इन सब में एस्केपिज़्म, ट्रॉमा, कोई इश्यू कहीं से पनपता ज़रूर है। वो डेप्थ में जाना हम काउंसलर्स का काम है कि भई कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से चला, कौन से सर्कमस्टेंसेस हुए या इंसिडेंट्स हुए, या आप व्हाइट कॉलर बंदे हो, आपने कुछ उल्टा-सीधा नहीं किया, लेकिन आप एडिक्शन में पड़ गए। तो अगर आप पड़ गए तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो एस्केपिज़्म, स्ट्रेस झेल नहीं पाते ये, ट्रॉमा होता है, इमोशनल पेन होता है। प्लस एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, अगर मेंटल हेल्थ इश्यू बढ़ गया है, तो इससे हुँ, इनको रिलीफ़ मिलती है, एक आराम मिलता है। दिमाग का जो कॉन्स्टेंट बज़ है या एक बातचीत जो हमारे दिमाग में चलती रहती है कॉन्स्टेंटली, उसको नम करने के लिए भी बहुत हुँ, लोग हुँ, इसको लिया करते हैं। सो अगर आप कॉज़ेज़ देखने जाओगे तो मल्टिपल है। और अगर आप उनको समझाएँ, या कॉलेजेस जब ये मुझे भी बुलाया जाता है अलग-अलग कॉलेजेस में टॉक्स देने के लिए, कई बच्चे वहाँ ही संभल जाते हैं। आगे बढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है, बट एक पूरा एक पॉपुलेशन है, एक सेक्शन है, जो क्रेव करता है, जो इसकी तरफ दौड़ता ही है। पीयर प्रेशर मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ। फैमिली एनवायरनमेंट में अगर कोई एडल्ट या पेरेंट या एल्डर सिबलिंग का इन्फ्लुएंस है और वो बंदा या बंदी, लड़का-लड़की आगे बढ़ गए हैं लेकर भी, तो हमको लगता है क्या कॉन्फिडेंस है इनका, कितना आगे करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो सूडो है। वो कब गिर जाएगा, कब वो क्रैश हो जाएगा, वो बेचारे जो ले रहे हैं एडिक्ट या अल्कोहलिक उनको भी नहीं पता है। तो कभी वो इन्फ्लुएंस से भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एक और तकलीफ़ है अभी मैत्री। जैसे अगर मुझे पीरियड पेन्स है या मेरा कोई बड़ा सर्जरी हुआ है और मुझे प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स दिए गए हैं, उसकी लत भी हो जाती है। बहुत तकलीफ से वो लत हटती है, एंड दैट आल्सो लीड्स टू एडिक्शन। The last part I would say is they are lonely. हुँ, Even हुँ, my partner at once upon a time on a KOT slip wrote a letter to me. So amongst the guilt, anxiety, anger, justification, it was written, I am alone. तो लेते-लेते या कोई उनको धुतकारता रहता है कि तुम तो बस इस लाइन में पड़ गए हो, अगर कम भी हुआ हो, व्हाट दे डू, दे हुँ। डिस्टेंस देमसेल्फ एंड दे बिकम अलोन। दैट लोनलीनेस में एक ही सहारा है भैया, जो आपको कभी कुछ जवाब नहीं देगा, उल्टा नहीं बोलेगा या बोलेगी, वो है आपकी बॉटल या आपका सब्सटेंस। सो हाँ, ये हाँ। सब जितना मैं समझ रही हूँ ये रीज़न्स हैं। ओके और अ, आई डोंट नो पहले कितना होता था अल्कोहल एडिक्शन बट अब क्योंकि मीडिया में ज़्यादा दिखता है, टीवी पे ज़्यादा दिखता है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा होने लगा है। अ, यंगर एज में होने लगा है लाइक बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हैं, टीनेजर्स आर देयर और एडल्ट्स तो हैं ही। तो डू यू थिंक कि इट हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स और वी आर जस्ट सीइंग मोर ऑफ इट बिकॉज़ वी आर टॉकिंग मोर अबाउट इट? It has definitely increased where I'll tell you. The age. Suppose I would never get a helpline phone call of a 13-year-old or a 14-year-old child. I get it. एंड मैं आपको बताऊँ मैत्री, क्योंकि मेरा खुद का पास्ट इससे एसोसिएटेड रहा है, मैं बच्ची रही हूँ मेरे फादर की, और जिस तरह मैंने देखा है मेरे हाथ काँपते हैं। My hands literally, sometimes I hold the phone like this because I don't want that the shaking of my hand result in the way I'm talking, right? हुँ, हुँ। So I catch it both the phones. So younger kids are definitely getting fascinated way more than what used to happen earlier. Where the number of people are concerned, शायद हमको पता नहीं चलता होगा, अभी जिस तरह सोशल मीडिया है या फ़ोन्स है, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो हम बहुत ईज़िली ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक दूसरे को, शायद उन समय नहीं थे और पॉपुलेशन भी इतना नहीं था, तो इंक्रीज़ तो ज़रूर हुआ है। एज लोअर हो गई है, जैसे 12-13 साल के बच्चे भी लेना शुरू करते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कभी-कभार मेरे पास जैसे क्लाइंट्स हैं जो 70 बरस, 60 बरस के भी हैं, जो भी आते हैं, जिनका प्रोबेबली बहुत देरी से चालू हुआ होगा इन्फ्लुएंस ऑफ एडिक्शन और पड़ गए होंगे, जो भी रीज़न हो। पिता गुज़र गए हैं, माँ गुज़र गई, जो भी रीज़न हो, और जॉब से निकाला गया है, और दे आर नॉट हैप्पी विद देयर फैमिली मेंबर्स और व्हाटएवर द रीज़न। सो देयर आर 60-70 ईयर ओल्ड्स आल्सो हू आर स्ट्रगलिंग विद इट एंड वुड लाइक टू टेक रिकवरी, वुड लाइक टू गो इन इट।
So yes, summarizing it, yes, the age has reduced and the population has increased, so the influence will be larger. ओके, तो एज के साथ-साथ अगर सोशियो का इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, क्या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई एनालिसिस या रिपोर्ट या रिसर्च भी नहीं है। अगर हमने ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, आई एम अ डॉटर ऑफ एन अल्कोहलिक, माय परसेंटेज ऑफ बिकमिंग वन इज़ वे हायर देन प्रोबेबली यू or other people who don't have the same genetic influence of addiction. So हुँ, I was very well aware of this pretty fast. It was ingrained in me that we are not going to do it. That is, me and my brother I decided without understanding the disease or the DNA aspect of it. लेकिन बाद में जब मैंने इसकी पढ़ाई की और मैं समझ पाई तो मुझे पता पता चल गया, पूरी तरह से पता चल गया कि मेरा टेंडेंसी हाई हो सकता है। तो हम अगर दूर रह चुके हैं तो दूर ही रहो। चाहे मेरे हस्बैंड ने उन दिनों में बोला तुम साथ में नहीं पीती हो, यू डोंट ड्रिंक विद मी, आई डोंट हैव कंपनी ऑफ योर्स, व्हाई डोंट यू हैव इट, देन इट विल बी गुड। बट समहाउ एज़ अ लक वुड हैव इट, आई वुड से आई एम लकी आल्सो, मैं पीती थी और मेरे शोल्डर्स इतने रिलैक्स हो जाते थे कि मुझे नींद आ जाती थी। सो इन फैक्ट आई वाज़ नॉट द वन हू वुड एन्जॉय, तो वो हट ही गया। So coming back to, can you tell me the question again? I lost the हाँ, train of कि thought. प्रिविलेज क्लासेस में ज़्यादा होता है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इम्पैक्ट करती है एडिक्शन को? हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं। जैसे हुँ, हमारा अगर कोई टेस्ट होता है, एलर्जी टेस्ट होता है, तो हमको मशरूम या प्रॉन या पीनट से क्यों एलर्जी है, वो एलर्जी टेस्ट में आ जाता है। उसी तरह अल्कोहल जब लेते हैं हम, वो रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में खुल जाते हैं और लगता है वाह! यही तो एक चीज़ थी जो मैं मिस कर रही थी या मिस कर रहा था, और वो बॉडी को इन्फ्लुएंस करने लगता है। बट कौन से शरीर में क्या है, हमको तो पता नहीं, वो तो हमको बाद में पता चलता है। तो ये क्लास, सेक्स, एज़ आपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये किसी का भाई-बहन नहीं है। अगर ये आपके बॉडी को भा गया, ये आपके मन, दिल, दिमाग को पसंद आ गया और आपने इसके फीचर्स समझ लिए कि ये लेता हूँ या ये पीती हूँ तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, वो आपको पसंद आने लगा, तो वो आपका वे ऑफ लाइफ हो जाएगा। फिर किस डगर पर जाके आप फेंस के उस पार चले गए, यू गो ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिंक, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। So it does not check who you are, what you are. If it has to affect you, it will affect you. So it's got no parameters of whatever you asked me for. Those are not the parameters required. ओके। तो जैसे आपने बोला कि डीएनए वाली बात कि किसी के रिसेप्टर्स हैं, खुल गए, उनको Hmm, लग गया hmm, कि हाँ, ये चीज़ आई hmm, वाज़ मिसिंग। तो सी आई ड्रिंक लाइक वन्स और ट्वाइस अ ईयर काइंड ऑफ पर्सन। ओके, और मैं जब भी कभी भी ड्रिंक किया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि वाओ क्या चीज़ है, लाइक आई ड्रिंक इट विद माय फ्रेंड्स, चलो टेस्ट ले लिया या फिर चलो ठीक है ये भी एक चीज़ है, ट्राई करनी चाहिए। इस तरीके से तो मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती। तो क्या डिफरेंस है? मतलब एक तो हो गया एक्सपोज़र है आपको शायद ज़्यादा। अब एट hmm. माय एज आई आल्सो हैव कंटीन्यूअस एक्सपोज़र, नोबडी इज़ हियर टू स्टॉप मी। बट ऐसा नहीं है कि Right, मैं right. जाके पी रही हूँ। तो Hmm, hmm. क्या है एग्ज़ैक्टली? एज़ आई टोल्ड यू, डिस्क्रिमिनेट तो करेगा नहीं, आपकी वनरेबिलिटी को ज़रूर देखता है, आप कौन से एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, आपको किस तरह ये भा जाता है। इट्स योर बॉडी, इट्स अ गेम ऑफ योर बॉडी एंड माइंड ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली उठा लिया एक ग्लास और आदत है हाथ में ग्लास पकड़ने की। बहुत हुँ, बहुत हुँ। लोगों ने मुझे ये कहा है कि अगर हस्बैंड का पीना छूट रहा है, वो सोबर हो रहे हैं, मैं कैसे छोड़ूं, मुझे तो आदत है ग्लास लेने की, मैं तो सिर्फ एक दो पीती हूँ, मुझे क्यों छोड़ने के लिए आप बोल रहे हो। हुँ, वो हुँ। बात अलग, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कैसे उनको इन्फ्लुएंस करता है सोब्राइटी में, अगर वाइफ़ या स्पाउस ले रहा है तो। हुँ, हुँ। किसी-किसी को ये जो ग्लास पे ऐसे टिश्यू लगा के होल्ड करने की आदत है, तो हुँ, एसोसिएशन अगर बढ़ जाएगा आपका आपके डेली लाइफ़ में, आइस इतना पड़ना ही चाहिए, सोडा उतनी होनी ही चाहिए, तो वहाँ आपका बिल्ट अप और टॉलरेंस बढ़ेगा। हुँ, तो अगर हुँ। आपका बिल्टअप और टॉलरेंस, जैसे आपने बोला मैं 1-2 लूँ तो लूँ, नहीं लूँ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट? इफ यू गो टू अ पार्टी, इफ यू फील लाइक हैविंग वन, फाइन, इफ यू डोंट फील लाइक हैविंग वन, फाइन। It's हुँ, your body does not get fascinated. Like today, I would like to try a particular alcohol. Just one sip and one peg will do me enough. So you know when to stop. Now, unfortunately, my dear community, the community I belong to, they don't know how to put it down. उनको वो आता ही नहीं है कि हम ग्लास कैसे रखें या स्नॉट कितना कम करें या जॉइंट्स कितने कम लें। ये पार्ट में वो इतने वनरेबल हो जाते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। तो यहाँ वो गेम खेलते हैं। एडिक्शन अपना जो गेम खेलती है आपके ऊपर, आपके दिल दिमाग पे, वो आपको वो तो होकर ही रहेगा।
ओके, तो फिर वंदना, फिजिकल हम्म डिपेंडेंस और इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, इसमें क्या हम्म। डिफरेंस आता है? आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि अगर हम कोई भी बंदा छोड़ता है या छोड़ना चाहती है तो विड्रॉल्स, हम्म। स्वेटिंग, शेकिंग, ट्रेमर्स, ये फिजिकल वाले क्या बोलते हैं, ये फिजिकल रूप में हमको दिखाई देता है। वी गेट टू सी दिस। हम्म। आई हैव हर्ड पीपल टेलिंग मी माई टंग शेक्स, माई आई बॉल, आई फील इट इन माई आईज टू। तो ये फिजिकल सिम्टम्स है। एडिक्शन के सिम्टम्स है, राइट? हम्म। फिजिकली जो आपको दिखाई देते हैं। इमोशनल मैंने अब मेरे घर में ही देखा। मैत्री, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पता था कि अगर मेरे डैड 4 या 5 पे है, तो मैं कैसे समझती थी? उनका अगर कोई मूवी चल रही है, वहाँ पे इमोशनल सीन है, तो मैं मेरे डैड की तरफ देखती रहती थी। ये ऐसे शेक होता रहता था, कंट्रोल करते रहते थे, ऐसे काँपते रहते थे कि रोए नहीं बच्चों के आगे। तो ये इमोशनल में आपको डाउन वल्नरेबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा, हम्म। आपको खींच लेती है नीचे। आपके इमोशंस रेगुलेशन जो होता है, आपके कंट्रोल में जो चीज़ें होती है, वो आपके हाथ से धीरे-धीरे सरकती रहती है। कभी-कभार आपका कोई इंटेंशन नहीं होगा कि आज घर जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं लड़ाई करूँगी, नहीं। आज मैंने अपने मन का कर लिया है, मैंने अपना कोटा ले लिया है, अब जाके मैं चुपचाप सोने वाली हूँ। और उसी दिन आप एक खूंखार जानवर की तरह रिएक्ट करते हैं, एंड यू हैव नो कंट्रोल ऑफ वेयर यू विल स्टॉप। There's no Q-tip that now I'm going to stop. Okay, I've said this to my loved one. I have informed they behave this way with me. They behave wrongly. Blame game though is on the top level here. I'm drinking or using the way I'm doing, probably because of you, because you made a face or you smiled extra, or today you did not speak, or the sky is blue. Anything could be the reason, but I will blame you. तो वहाँ वो जो पूरा संयम जो शरीर दिल दिमाग का होता है वो छूट जाता है। तो physically there are sweating, shaking. If you see the spoon, if they pick up, it can literally shake like this, or the glass they hold, that can really go topsy turvy. And emotions में तो भाई बात ही मत पूछो, कहाँ तक ये जा सकते हैं। रेगुलेशन, संतुलन पूरा छूट जाता है। ओके, तो कुछ अर्ली रेड फ्लैग्स होते होंगे, अगर हमारे आसपास कोई है या हम खुद भी हैं, मे बी सटल हो, मे बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो हम एक शुरू से कैसे पता कर सकते हैं कि दे माइट बी स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन? When I met my partner for the first day, he was holding a glass of whiskey. हम्म। जबकि मेरे फादर और मेरे चाचा को मैं देख चुकी हूँ, मेरे कज़िन्स को भी देख चुकी हूँ, फिर भी मैं नहीं समझ पाई, बिकॉज़ ही वाज़ टोटली चार्मिंग, इन कंट्रोल, holding a glass to see a girl for the first time, huge red flag. Now, in today's time when I'm counseling, when the girls are calling me, I have a fiancé who does that, or the guys also call me, I ask them the same question as you've asked me. भाई तुम देखती क्या हो? देखा क्या है? मुझे बताओ। Once they tell me, I tell them रेड, ग्रीन और व्हाटएवर। हाथ में अगर ग्लास है या बंदा या बंदी यूज़ कर रहे हैं, जॉइंट्स ले रहे हैं, वीड तो कैनबिस तो इनको लगता है कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो मेरे पास इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं हेलुसिनेशन के, वॉर्प्ड थॉट प्रोसेस के? तो वो भी सब्सटेंस है, वो आपकी लंका जला ही देगा। सो अगर ये बोले कि एक एक ही जॉइंट लेता है, हम शेयर करते हैं, लेकिन जब वो लेता है तो उसके बाद उसका एंगर लेवल्स या मूड स्विंग्स हो जाते हैं। रेड फ्लैग। कि अगर मैं ले रही हूँ तो अगर मेरे को कल वो नहीं भी ऑफर करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो लेता है तो अंतर ये है हम दोनों में, मुझे आराम मिलता है, मुझे नींद आ जाती है, मैं शायद सो जाती हूँ या कुछ मीठा खा लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। लेकिन इसके मूड स्विंग में इसको एंगर लेवल्स इसके हाई हो जाते हैं या ये बंदा ही बदल जाता है। यू नो देयर इज़ अ स्विच फ्रॉम वन ए पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यू बिकम समबडी एल्स। दैट इज़ अनदर रेड फ्लैग कि आप अगर देख रहे हैं अपने आँख के सामने तो उस पे ध्यान दीजिए। दूसरी तीसरी बात ये है कि फाइनेंसेस, the expenditure, like if the parents are noticing that a child or young adult whom they have in the family is spending a lot of हम्म। money, it's like a crazy jump, like a crazy leap, that is a sign that they should watch. ओके। Children sometimes shut their doors as it is, they love their privacy, they don't want to be with the adults, but sudden shift आए तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। दोस्त कौन है उस पर ध्यान दीजिए, उनके पियर्स कौन है, आसपास में कौन है, या ऑफिस में कौन सा स्ट्रेस चल रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन कर पाए और आपको पता चले, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स दैट यू कैन लुक आउट टू। देयर बी मैनी, मैत्री, ये मेरे ध्यान में अभी आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर उनको नोटिस करें
तो आपको दिखाई ज़रूर देगा। इग्नोर नहीं करिए, वो तो डिनायल में रहते हैं। आप लोग प्लीज़, फैमिली या फ्रेंड्स प्लीज़ डिनायल में नहीं रहिए। आपको हुँ। अगर दिख गया कुछ तो वो प्यार से या रिस्पेक्टफुली उसको पोर्ट्रे ज़रूर करिए कि भैया हम ये समझ रहे हैं, ये हमको समझ आ रहा है, ये तुम में फ़र्क दिखाई दे रहा है, कुछ चल रहा है तो हमसे शेयर करो। नॉर्मली दे वुड नॉट, बट बी माइंडफुल अबाउट इट कॉन्स्टेंटली सो दैट यू कैन बी दैट हेल्प दैट दे रिक्वायर। डरते हैं माँगने से, हेल्प से डरते हैं, विथड्रॉल से तो उनको बड़ा डर है, इसके लिए हेल्प से डरते हैं। लेकिन आपका काम ज़रूर है, अगर आप उनके सिग्निफिकेंट अदर हो, उनके आस-पास हो, तो आते-जाते एक कार्ड रख दिया कोई रिहैब सेंटर का या कोई काउंसलर का, या लैपटॉप खोल दिया जिस पे वेबसाइट है, वो रिहैब सेंटर की या काउंसलर्स की, तो वो देख लेंगे ज़रूर। देर सर पे हो नहीं सकता कि उसी दिन, बट 1 महीने बाद, 6 महीने बाद वो आपके पास वापस आएँगे कि ये आपने मुझे दिखाया था, कैन वी लुक फॉर हेल्प नाउ? So wait for that day and jump on it. But yeah, red flags are something you can keep observing and keep make a checklist of that. ओके। और फिर अगर वंदना इसी पे थोड़ा-सा बिल्डअप करें, तो कैजुअल यूज़ और प्रॉब्लमैटिक यूज़, इसकी लाइन आई एम श्योर ब्लरी होती होगी, तो हम कैसे फिगर आउट करें? कैसे डिफरेंशिएट आप करें? मैंने मैंने लिखा भी है रिसेंटली, ये ब्लरी है, आपने एकदम सही कहा। अ, यहाँ मैं पूरा आपका ध्यान इमोशंस पे खींच लेती हूँ। कि अगर सुबह उठे हैं, फंक्शनल भी होते हैं ये लोग, दे गो टू वर्क, इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी इज जस्ट लाइंग डाउन लॉइटरिंग अराउंड एंड नॉट डूइंग एवरीबॉडी एनीथिंग, सॉरी, नॉट डूइंग एनीथिंग। फंक्शनल होते हैं ये लोग। अगर फंक्शनल है, सुबह उठ के बंदा जा रहा है फ्रेशन अप होके, अपना नहा धो के, दे आर नॉट इवन, some of them don't take care of hygiene, some of them are extra hygienic, so you will not be able to point out कि ये तो सब सही कर रहा है, there is salary coming in, he's managing his bills properly, but somewhere if you notice that their reaction to a small issue which they must have never even looked at is way bigger than the other, you know, it will attract your attention. ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों ऐसे बोल रही है, that is also a sign for you that the blurry line is now clear, एंड कैजुअल यूज से ये कंसोलिडेटेड कंपल्सिव ऑब्सेसिव यूज हो रहा है। और अगर सपोज एक अगर एग्जांपल देती हूँ, आपने बोला आज मत पियो, आज हम इस जगह जा रहे हैं, आज आप मत नहीं पीते हैं ना, हम दोनों साथ में नहीं पीते, कोई भी दोस्त हो, दो या का पार्टनर्स हो, और वो एकदम रिएक्शन में चला जाए, व्हाई, और यू टेल देम दैट आज उधर अल्कोहल नहीं है, और सडनली यू सी अ फ्रीज इन द बॉडी, और द पर्सन लुक्स फॉर द क्लोजेस्ट वाइन शॉप टू टेक हिज कोटा, दैट इज़ अ वेरी बिग रिएक्शन, और टू फॉर यू टू ऑब्जर्व कि ये अभी सिंपल नहीं रहा है, हैबिचुअल भी नहीं है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो गई है, टॉलरेंस बढ़ गई है, और अब ये आगे जाके इट डजंट लुक गुड टू एनी वन ऑफ अस, नॉट फॉर हिम, नॉट फॉर अस ऑल्सो, नॉट फॉर द रिलेशनशिप टू। हुँ, ओके। तो वंदना आपने बोला कि मान लीजिए आपको दिख रहा है कि कोई स्लिप हो रहा है एडिक्शन की तरफ, तो देयर इज़ अ वे ऑफ टेलिंग देम एंड देयर आर सटल हिंट्स कि आप उनके सामने पैम्फलेट रख सकते हो, वेबसाइट दिखा सकते हो। व्हाट आर सम अदर वेज़, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करना ही चाहे कि हाँ, देख लिया उन्होंने, दे आर अंडरस्टैंडिंग, बट एज़ यू आल्सो सेड कि दे लिव इन डिनायल। और अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो दे माइट गेट एंग्री कि तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है एंड ऑल दैट। तो कैसे हेल्प करें? सवाल बहुत अच्छा है। तभी मुझे, हाँ, यहाँ पर आते हैं हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, को डिपेंडेंट काउंसलर। मेरा मेन काम मैत्री है फैमिली को समझाना, क्या करिए क्या मत करिए, क्योंकि हम बहुत करते हैं। एक जगह पे आपको काउंसलर आके समझाएगा ये चीज़ आप मत करिए। कोडिपेंडेंट काउंसलर का काम क्या होगा यहाँ पर, फैमिली मुझे ये सब एग्जाम्पल्स देती है कि ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, रिएक्शन है, झगड़ा कभी नहीं करता था, अभी तो जब देखो उसके मुंह पे गाली है, द लैंग्वेज चेंजेस, दे गेट मोर अब्यूजिव, कभी हमारी पूरी रिस्पेक्ट करता था। वहाँ पर अगर वो आते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं, तो मैं बोलती हूँ अगर वो पर्सन हु इज़ यूजिंग और ट्रेकिंग, इफ दैट पर्सन इज नॉट येट रेडी टू मीट मी, काइंडली यू कम इन। क्यों बुलाती हूँ मैं उनको, कि जब वो मेरे सामने बैठेंगे बात करेंगे, मैं धीरे धीरे उनको काउंसिल करना शुरू करती हूँ, उनके बिहेवियर पर भी मैं उनका अटेंशन ले आती हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप इतना शक क्यों कर रहे थे, क्या आप शुरू से इस तरह उस पर सस्पिशन रखते थे, आपकी पर्सनैलिटी उन पे किस तरह भावी होती है, वाई शुड यू निग्लेक्ट देम, इग्नोर देयर ग्रोथ। If a family member, significant other has done that, I take notes of that, I make
mental notes, and then I remind them that here you can make a change, there you can make a change. I give them this information. Now, what happens when they make changes? When they make changes, the person who's using or taking also pays attention to how your behavior is. हमारा आँख, हमारा कान उनकी तरफ होता है, उनको भी पता है हम किस चीज़ पे कैसे बिहेव करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी वेल अवेयर ऑफ आवर बिहेवियर, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा इंटोनेशन। अगर मैं 4 पी के आया हूँ और उन्होंने मुझे रोका था कि तुम 8 नहीं पियोगे, तो मैं 4 पी के आया हूँ, तो अभी क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझे? मैंने सुन ली ना बात, तो मैं क्यों सुनूँ इसकी बात? मैं 8, अपना 8 का जो मेरा कोटा है वही करूँगा। So if I have realized that he's not listened to me, he's gone to half, I should be compassionate towards him, and some encouragement on small victories is very important for them to go further. अब ये अपने आप से तो समझ में नहीं आएगा मैत्री, अपने आप से तो गुस्सा आएगा कि ये ज़ीरो पे क्यों नहीं चले जाते, बहुत गुस्सा आएगा। ये अपने फाइनेंसेस क्यों नहीं मैनेज करते, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा बिहेवियर क्यों नहीं करते, जो भी कंप्लेंट्स होती है उनकी। तो वहाँ मैं उनको थोड़ी इंसाइट देती हूँ। आई रिक्वेस्ट देम कि यहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, या कठोर नहीं है, बिल्कुल सरल है, तो मैं बोलती हूँ अप द एंटे हियर, थोड़ा अपना रुबाब जो आपकी उम्र का होगा या आपके रिलेशनशिप का होगा उसको बढ़ाइए। सो वेर एवर द कॉर्नर्स हैव टू बी कट और एनहेंस्ड, दैट इज़ वेयर आई कम इन, एंड दे कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज। और जिस तरह मैं आपको बोलती थी, जैसे हम इनके हाव भाव समझते हैं वो भी हमारे समझते हैं, तो वो नोटिस ज़रूर करेंगे कि क्या चल रहा है, किससे बात कर रहे हैं, ऐसा चेंज कहाँ आया है। That fascinates them, that intrigues them, and you build up on that intrigue. अच्छा, ये आप किससे मिलने जा रहे हो? आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, आपको जब समझ में आ गया है, आप एक्स्ट्रा बातें करने लगे हो, या जो भी वो बोले। सो एंड दे आस्क यू किससे बात करें, देन यू इंट्रोड्यूस देम दैट आई एम मीटिंग दिस पर्सन फॉर काउंसलिंग फॉर मी। It's got nothing to do with you. That impression you have to give that person. This is not I'm doing for you. I'm doing it for me because my emotions go haywire when I see you entering the door, or if you're locked inside your room. If you do these things, my emotions I'm not able to handle. Hence, I need to do counseling, which works. Badri, it is not a gimmick. It is not to interest them. It is actually very good if the codependents, the significant others of the alcoholic or the addicts also take help. सो हम नाक ऐसे पकड़े, या तो सीधा बंदा आ जाए, या हम नाक ऐसे पकड़े। एंड में अगर उसको बेनिफिट होता है और साथ साथ में आपका भी बेनिफिट हो जाता है, तो क्या बुरा है। इन अनत्ता वी आर Mhm. वेरी बिग ऑन डिपेंडेंट एंड को डिपेंडेंट काउंसलिंग। इट कैन नॉट वर्क ऑन अ सेपरेट नोट के डिपेंडेंट तो कर रहा है अपना काम, सोबर भी हो चला है, और फैमिली वही की वहीं भटक रही है, दोस्त वहीं के वहीं भटक रहे हैं। इनको भी ज़रूरत है वो सहूलियत की जो हम प्रोवाइड करते हैं, कि ये आप भी करिए। Their program can be 24/7, a longer program, 4 months, 6 months. These people, the codependence program is on a non residential basis and can continue even after the person has become sober, because sometimes we need to understand them better once they are back. Mhm. That's Okay. my main role. Yeah. अंडरस्टूड ओके सो दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग वंदना और नेक्स्ट चीज़ है कि अगर कोई रिहैब में आने के लिए तैयार हो जाता है और तो रिहैब से वो उसके फैमिली वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें शॉर्ट में बताइए देखिए, पहले हफ्ता, जो पहला वीक होता है, क्रूशल है, बिकॉज द फर्स्ट थिंग द एडिक्ट और अल्कोहलिक, व्हाई द हेल डिड आई से यस। कितनी भी आप सुंदर जगह दे दिए, कितनी भी सहूलियतें दे दीजिए, वो ये सवाल उसके दिल-दिमाग से गुज़रेगा ही कि क्यों मैंने हाँ कर दिया? मैनेज कर रहा था, मेरे को पहली बात तो उनको ये पता नहीं क्यों लगता है कि हम अपने आप से भी कर सकते हैं। भई अगर आप अपने आप से कर सकते हैं तो ये नौबत ही नहीं आती ना, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे तो हमको रिहैब की ज़रूरत है। तो वो आपसे, अगर कॉल्स अलाउड है, ज़्यादातर अलाउड नहीं होने चाहिए, इमोशनल रिलेशन से थोड़ा टाइम दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर अलाउड है या ईमेल अलाउड है, तो वो ज़रूर आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया, आपने मुझे कौन-सी जगह डाल दिया। भले ही सबसे बेहतर रिहैब है, ब अच्छे काउंसलर्स हैं, मुझे पसंद है, मुझे वापस ले आओ। So that physical and emotional trauma, body is going through the physical withdrawal, there's a shake in the body, and believe you me, बहुत ही तकलीफ़दायक है, आसान नहीं है। जो जिस तरह से मैंने देखा है, एक मेरे क्लाइंट थे, उनको हेडेक्स होते थे, तो सह नहीं पाते थे दवाई लेने के बाद भी, ही यूज्ड टू हिट हिज़ हेड अगेंस्ट द वॉल। तो हम उनको जाके रोक देते थे, लेकिन उसको वो करना पड़ रहा था टिल द हेडेक डज़न्ट सेटल डाउन। One client would roll down and fall off the bed because of the pain that he's going through in the stomach. Some people have diarrhea for 12 days. अब ये आसान बात नहीं है। पहली बात तो हर एक बंदा जो अगर रिहैब तक पहुँचता भी है, 100% अपने मर्ज़ी से नहीं आया होता है।
कोई 20, हम्म। कोई 30, कोई 85, ये परसेंटेज वेरी करता है। किसी को फिजिकल इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, या फाइनेंशियली इतना पिट गया है कि बस कोई और दरवाजा ही नहीं है कि भाई हम यहाँ चले जाए, या चारों खाने चित है, सब हो सकते हैं। So in that state, you can just very well be aware and imagine, Maitri, that he is not completely stable to make right decisions. So the families helped him to make that decision, family or peers or friends. Okay, so physically withdrawal से गुजर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है, इमोशनली पूरा हेवायर है, मेंटली उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इधर। और कभी कभार अगर जगह लॉक्ड वाली है, इनवॉलेंट्री है, तो पहला चीज़ तो वो नोटिस करेगा कौन सा गेट किस तरह खुलता है, कौन सा गार्ड किस तरफ जाता है, वो ज़रूर नोटिस करेगा। मैनिपुलेशन दिमाग में इनके सतत चलता रहता है। लेकिन अगर वॉलंटरी जगह है, तो प्यार से रिस्पेक्टफुली उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि बेचारे रिस्पेक्टफुली आके काउंसलर से बोलते भी कि हमको जाने दो। तो देर इज़ अ क्रेजी body, emotional, mental issue which is going on in their body, and they need a lot of help and support of the counselors at that time. And at Anatta, again, we do this. We are with them 24 by 7. We don't leave them. If they wake you up at 2 in the morning or 4 in the evening, or they themselves also have timings which are crazy, it's all allowed. We have to take care of them. We've decided to take care of this issue. Hence, the compassion in us and the respect for the other has to be larger than life. And we really look forward to helping such people. Nobody ओके। gets angry with them, nobody reacts with them कि इस तरह से बिहेवियर। कभी कभार उल्टा सीधा हमको भी बोल देते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते, हम सुन लेते हैं, इट्स ओके। दिस माइट कंटिन्यू फॉर द फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, प्रॉब्ली थर्ड वीक ऑल्सो। वाह! तो बहुत रेज़िलियंस चाहिए जो काउंसलर्स हैं उनको भी। तो वंदना, जैसे आपने बोला काउंसलिंग है, अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग और भी कुछ होता है क्या? दवा देते हो या और कुछ क्या होता है? ज़रूरत के ऊपर है, हमारा जो काम है हम पूरा ज़रूरत से करते हैं कि अगर दवाई की ज़रूरत है, हुँ, very mild sleeping tablets are given which can be tapered off. हमारे यहाँ मैत्री हम ये देखते हैं कि कब ये रेडी हो रहे हैं हमारी बात पूरी तरह सुनने के लिए, क्योंकि पहला 2 हफ्ता जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या ही बेचारा या बेचारी सुन पाएंगे। सुन लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा थर्ड वीक से। 21 days यूजुअली वी हैव नोटिस्ड, एंड बाय रिसर्च एंड आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सैम्पल ग्रुप, देयर इज़ अ शिफ्ट, देयर इज़ अ चेंज इन देयर eye contact with us, their body language, their approach changes. And that's a very good sign for us to bring up the program, the meditation, the counseling enhances, the sharing period, number of hours increases. They are more available to us. तो अगर वो पहला 3 हफ्ता या 2 हफ्ता या पहले हफ्ते में ही उनको दवाई की ज़रूरत है, उनके बॉडी को संतुलन में लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अ हेल्दी डाइट, good amount of sleep that you can take, then we give it to them and we taper it off. It is not going to be that आप एक क्रच छुड़ाने हमारे पास आए हैं, एक डिपेंडेंसी छुड़ाने हमारे पास आए, हम दूसरी जोड़ रहे हैं आपके लिए। हुँ, हुँ। मेडिसिन से भी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और इनकी तो वैसे भी फितरत है डिपेंडेंट होने की, टू हुँ, हुँ, डिपेंड ऑन बिल्कुल। मेडिकेशन और एनी सब्सटेंस। तो वो फितरत हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिजीज, हेंस वी डोंट लेट them take extra medication. As much as it's required in dosages, it's ओके। tapered out. We depend more on good food, juices, a healthy lifestyle that we introduce them to. And if they sleep better, they eat better, that's a cue for us that the person is available to you now to build up the program further. ओके, तो ऑन एन एवरेज स्टार्ट टू फिनिश का कोई टाइम होता है कि इतने दिन में सही ही हो जाते हैं या इट डिपेंड्स कि आपको कितना डीप एडिक्शन है? पर्सन टू पर्सन है, बहुत ओके। सब्जेक्टिव है। बोल भी हुँ, नहीं सकते कि आप और सपोज़ आप और 2 हम बहनें भी अगर हैं, और हम हुँ। दोनों को ये तकलीफ़ है, तो एक 4 महीने में ठीक हो रहा है, दूसरा 4 साल लगा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वाओ! तो ये ओके। पर्सन टू पर्सन है, एंड डेप्थ भी अलग होती है, इश्यूज़ भी अलग होते हैं, माइंडसेट अलग हो जाते हैं लोगों के। Usually when they call me and they ask me what's the duration, I tell them 4 to 6 months. There are other rehabs who don't want to give a time. There are rehabs who say 1 year, minimum 1 year. Don't even think about taking the person out before that. We look at personalities. Some of them would like to go back to their work, so we go with them, live in their city, and customize the program that while you're working for 5 6 hours, we are around you, and we can continue the program in your city too.
the beginning of the program will definitely happen at my place, and post that, when we also have the confidence, you have the confidence, we both can continue the program at your place, or it continues under my watch only at Pune or Bombay. ओके देन ठीक है, एक बार रिहैब में आए, ठीक हो गए, आपको 1 साल लगा, 2 साल लगा, नाउ यू आर फाइन। तो हाउ डू यू स्टे क्लीन इन द रियल वर्ल्ड? क्योंकि वहाँ तो टेम्पटेशन है, वहाँ पे स्ट्रेस है, वहाँ पे ट्रिगर्स हैं, सब कुछ है। तो फिर एक बार वहाँ जाके कैसे क्लीन रह सकते हैं? बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है इन लोगों के लिए। हम बोलते हैं देयर आर शार्क्स वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कि एक गलती कर लो और सब आ जाएँगे तुमको, या पिलाने के लिए, या अटैक करने के लिए, या जो भी आपको समझना है इससे। सो since, as I told you earlier, that it is not a complete decision, not a 100% decision that I want to quit. Okay, it is somewhere influenced by your health, your finances, your emotional relationships, and etc etc. But somewhere in the third week, in the sixth week, in the sixth month, you get it. Some shift happens. There's a turn in your understanding. And by writing techniques that we introduced when we are doing the therapy with them, they figure it out that this is something I don't want in my life. एक वो decision है मैत्री. If you hear about the other stars also who openly talk on internet about their addiction, especially the Hollywood stars, in that Robert Downey Jr. says one thing: it is that one decision which I was lacking. I was repeatedly going to rehab, seeking help, was caught by the police, did whatever, but in the end it is that one decision that matters, that not from today I will not be touching it, not using it. And I have a plethora of experiences. It's not that मैं नींद से उठा और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है और मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मेरे पास फुल ऑन एक्सपीरियंस है मेरे डिस्ट्रक्शन का, मेरी पर्सनैलिटी का, और जो मेरे साथ, देखो दूसरे जो मेरे साथ करते हैं वो तो करते हैं। It's always like this. The other is hell. They are going to trouble you in some format. What did I do with my own self? Once they get that, once they realize that aspect, that there comes a understanding that not anymore, then they can live in the outside atmosphere. The biggest part I'll add on to this is the touch, the connection with your counselor, one or two. Mhm, If you are in touch mhm, with your sponsor, your counselor who guides you further in the real world too, because I tell my clients, your rehab is not my place where you are. Your rehab is once you come out of my place, your own house, your office atmosphere, your wherever you go. That's your real rehab, because you have to implement all the tools that have been practiced time and again, day in and out there at the center. And once you are outside, you have to use it, and you should use it somewhere. The connection with your counselor on a daily basis to begin with, and that can taper off to once a week, once in a month, meeting the sponsor or the therapist regularly. All these elements will help you to build up that new building that you're ready to make. नेवर टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि हाँ मैं तो सीख कर आया, मुझे सब पता है। ये लाइन ना, मुझे सब पता है, यही आपका डिस्ट्रक्शन है। आपको एक चीज याद रखनी है, वो 1 महीना सोबर क्लीन हो कि मेरी तरह इमोशनल सोबराइटी में जो मैं जी रही हूँ, हम वर्क इन प्रोग्रेस है। हम कभी नहीं बोल सकते हमारा काम हो गया। जिस दिन, उन दिनों में भी, शुरुआत के दिनों में, आई यूज टू फील नाउ माई पर्सनैलिटी सेट, नाउ आई एम, कुछ हो जाता था और चैलेंज आ जाता था mhm, सामने। तब से मैंने ये सोच के रखा, ये फ्रेज़ म बढ़िया है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बुरा है भैया? अगर हम अपने आप को ही एनहांस कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इमोशनल स्टेटस को बढ़ा रहे हैं, बाय द डे, इफ वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, व्हाट आई वाज़ 5 years ago, आई एम नॉट दैट पर्सन। So am I happy being this new person? Yes. This line for sober people also, for the new sober person, that I am better than yesterday today. I'm mhm, emotionally stronger. I'm able to handle myself today way better than last week. ये छोटे छोटे सक्सेस एक्सपीरियंस जब वो करते हैं ना, काउंसलर के mhm, जरिए या खुद के जरिए, ये छोटी छोटी मंजिलें जब चढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म्स गोल्स जो पूरे कर लेते हैं, वो उनको आगे बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्म गोल्स mhm, हम उनको करने ही नहीं देते। In the first year of their sobriety, we also request them to not make strong decisions. If a marriage is breaking, don't take a divorce immediately. Think about it. Or if you have to get married, don't be in a hurry to do that. No hurry in starting a new business or shutting down something which is lingering on for some time. Hold on. Easy does it.
कीप इट सिंपल, धीरे 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 आप वहाँ पहुँचिए और हम आपके साथ हैं। आपका फ़ोन एक बार अगर हमने नहीं उठाया, बुरा नहीं मानिए, इट्स नॉट एन इमोशनल अटैक टुवर्ड्स यू दैट सपोज टुडे राइट नाउ इफ आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट विथ यू, आई कैन नॉट टेक द कॉल, राइट? बट आई विल कॉल यू बैक, वेट फॉर दैट। हम्म। उतना पेशेंस खाली रखिए, आई विल कॉल यू बैक एंड देन लेट्स सी वेयर इट goes from there. Whatever you will bring up to me, any issue, I will have a solution. But if I don't have, I will tell you, let me get back to you on this tomorrow. तब तक आप अपना जो पुराना राइटिंग है उसको पढ़िए या राइटिंग शुरू करिए. If you start writing and you write down about your problems, you see it objectively on the paper. You know, paper is like a very beautiful counselor who does not have any gesture. It's a white paper and your pen. So when you get back to some of your old things that helped you, that will also get you feel good. You'll get that feel good factor immediately, that yeah, I've written it down, I'm reading it objectively, and then I can put the paper aside. There are clients, my three, who have called us and we've taken probably 10 minutes to call back. They have told me that at that time I was at a very very strong level, I was not able to hold on to my words and I was going crazy, but now I'm settled. I remembered some words spoken between you and me. I read some messages or I wrote things down and I'm better. Implementation जो आपको टूल सिखाए गए हैं आप नहीं करेंगे, what you don't use you will lose. So you need हम्म। to constantly be working at yourself. As I said, work in progress. ऑलवेज ओके। तो चाहे वो टेम्पटेशन हो, स्लिप अप्स हो, रिलैप्सेस हो, ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं और जैसा आपने बताया कि ये सब चीज़ें आती रहेंगी, बट शेम में नहीं जाना है, गिल्ट में नहीं जाना है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर अ पर्सन, और जो आपका एडिक्शन है, जो आपकी डिपेंडेंस है, वो अलग है आपसे। यू आर नॉट दैट थिंग। आप अलग हो, वो अलग है, और आप चाहो तो आप उस चीज़ से बाहर भी आ सकते हो, और बहुत सारे लोग आते भी हैं। तो ज़रूर। वंदना, लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कोई प्रैक्टिकल चीज़ें हों, जो हम कर सकें कि हमें लग रहा है कि हाँ, मे बी वी आर स्लिपिंग टुवर्ड्स एडिक्शन, हम्म। और मान लीजिए देयर इज़ अ वुमन हू इज़ सीक्रेटली टेकिंग पिल्स कि यार आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो एक पेन किलर खा लिया, ठीक है? और उसको पता है, या फिर शी इज़ हाइडिंग हर ड्रिंकिंग, और उसको पता है, कहीं न कहीं अवेयर है कि शी नीड्स हेल्प। तो व्हाट शी कैन स्टार्ट डूइंग टुडे? आजकल का जो एक नया फंडा भी है, हम पहले सिंपल राइटिंग बोलते थे उसको, लेकिन एक जर्नलिंग भी शुरू हुआ है। हुँ, तो अगर आप लिखें अपने बारे में कि आज मुझे ये फीलिंग आई तो मैंने एक टैबलेट ले लिया, एक शॉट ले लिया, जिस तरह आपने मुझे एग्जाम्पल दिया है, तो कहाँ से आ रही हूँ मैं, क्यों होता है मुझे? तो अगर आप वॉच करें अपने आप को कि ये एक ट्रिगर है। ट्रिगर्स जो होते हैं ना इनके, फिजिकल या इमोशनल, उसकी जानकारी जब हम काउंसलर्स को भी मिलती है उनके थ्रू, तो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भैया ये तो ट्रिगर है, ये फिजिकल है, ये इमोशनल है। कभी कभी तो हुँ, खुद का शरीर भी एक ट्रिगर ही हो जाता है, अगर हम इतने ही प्रैक्टिस में रहते हैं लेने के पीने के, तो वो ट्रिगर ही हो जाता है, राइट? लेकिन अगर हमको पता चल जाता है, वी आइडेंटिफाई द ट्रिगर, हुँ, then if she has not gone to a counselor, if she has not seeked help outside, then खुद से अगर आप अपने बारे में अब अगर आप खुद से ये लिखेंगी और आपको पता चलेगा हाँ ये जब होता है ना तो मेरी बॉडी में जो सेंसेशन आते हैं वो मुझे अपना सब्सटेंस लेने में इनवाइट करते हैं, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ. तो विदाउट अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, इफ यू रीच दिस लेवल एंड यू आर एबल टू स्टॉप योर सेल्फ, we are more than happy if there are such miracle cases. Everybody doesn't need a rehab. Everybody doesn't need to go there. If you are able to figure out through AA meetings or NA meetings, there are a lot of support groups. मेरे पास हुँ, भी कभी कॉल आ जाता है, मुझे कोई बोलता है अभी इस समय अगर आप मुझे 5 मिनट अपना दे दीजिए, मैं जानती भी नहीं हूँ उनको, फोन में कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर मैं दे पाती हूँ और उससे कुछ निवारण, कुछ सेटलमेंट, some kind of like a settling down happens to the person, why not? Everybody doesn't need to knock the doors of these big places or small places. हुँ, If I'm येस। able to answer your question. यस, यस, और ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारी बड़ी हेल्प कर सकती हैं। वी जस्ट हैव टू यूज़ देम माइंडफुली एट द राइट टाइम, आई थिंक, और चेंज आता है। ऐसा नहीं ज़रूर, है ज़रूर। कि जैसे अगर एक योगा, योगा जो हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आजकल लोगों का ध्यान खींचा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो योगा करके, एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट को सँभाल के, अपना मेंटल मेकअप ठीक करके
अगर आगे बढ़ सकते हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन मिल गया है, कोई गुरु है, मॉडर्न गुरुज भी बहुत है। इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ स्मॉल स्निपेट्स एंड एनी वन लाइन यू पिक अप एंड दैट टेक्स यू फर्दर and you build up your life on a very different track. Why not? Mhm. Why not? I would appreciate if people come forward and tell me these stories कि मैं ये कर रहा था या ये करके मैं आगे बढ़ गई या बढ़ गया. I'll be more than happy to know such stories. I want to understand, Vandana, ki what gives you hope when it comes to addiction recovery? The sample group that I have, the clients that I have, and I've seen them live a sober and healthy life for a substantial amount of time, and I see them rebuilding their lives. They'll take their time, they'll improvise on the character defects which have developed over the usage, or they will even make amends to their loved ones, to themselves. अपने आप को माफ़ करना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना, उस पहली शुरुआत यहाँ से होती है, अपने आप से होती है। एंड द फैमिलीज इन्फॉर्म मी, वाइफ्स कनेक्टेड रहती हैं मुझसे, सालों साल तक कनेक्टेड रहती है, फैमिलीज़ भी मुझे इन्फॉर्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जब मेरे तरफ आती है, या खुद खुद भी मेरे क्लाइंट्स भी कॉल करते हैं, चलो आज कॉफ़ी पे यहाँ मिलते हैं या कहीं, या जब मैं उनके शहर में जाती हूँ, मैं ज़रूर जितने हो, 4 हो 10 हो, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं 2 दिन या 4 दिन आपके शहर में हूँ, आप बताइए हम कब मिल सकते हैं। तो वो जब मुझे मिलने आते हैं और वो जो वॉक देखती हूँ मैं उनका, जिस तरह वो आ रहे हैं, आई कैन डांस ऑन वन लेग, मैत्री। अभी भी जब मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा दिल भर आता है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे डैड के चलते मैं सोब्राइटी तो शायद नहीं देख पाई, बाद में मैंने उसके कलर्स बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके से देखे, लेकिन वो मेरी फैमिली है, मेरे लव्ड वंस हैं। जब मैं दूसरों के ज़िंदगी में उन लव्ड वंस को आगे बढ़ता देखती हूँ, आई हैव अ टीयर इन माई आई एंड आई एम डांसिंग विद जॉय। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मुझे मोटिवेट करता है, मुझे प्रोत्साहित करता है कि जो मैं काम करती हूँ मैं करती रहूँगी। मैं आई विल नेवर गिव अप ऑन दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी फ़िलहाल भी मैं लोगों को बोलने लगी हूँ कि कार्य कठिन है, लेकिन करने योग्य है भैया। इट इज़ वर्थ इट। जस्ट ट्राई, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप। फेलियर नहीं हैं आप, फेल हो गए हैं, लेकिन आप फेलियर नहीं हैं। तो लोग हैं ना, एग्ज़ामिनर्स हैं, क्या बोलते हैं, सपोर्टर्स हैं, आप हमको जो नाम देना चाहिए आप दीजिए, हमको ज़िंदगी भर यूज़ करिए, और हम आपके लिए किसी भी कोने में अगर आप हमको इनवाइट करें, हम पहुँच जाएँगे आपको हेल्प करने। Many people, Maitri, I'll inform you, if they can't come to my center, I go to their place and I've lived in their houses for weeks, months also. If the mountain cannot, if Muhammad cannot come to the mountain will go to Muhammad. आप खाली बोलिए आपको थेरेपी चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। तो ये बात मुझे बहुत एनर्जी देती है, बहुत प्रोत्साहित करती है। आई फील, suppose I'm tired at the end of the day, I do get tired because this is emotions, it drains you at times, but I get a call at 11 at night that, ma'am, there is something like this, would you like to talk about it, for give me 5-10 minutes. My whole backbone becomes like this, I get full on energy, I talk to them, and once I hang up, I relax and I go off to sleep. So it is a 24/7 work. It is a human cause. We can't think today, आज इतना हेल्प कर दिया बस आगे मुझसे नहीं होगा, होगा। आप कोशिश करते रहिए, हमारे जैसे और लोग होने चाहिए जो इस ज़िंदगी से जूझ चुके हैं, जी चुके हैं और सोब्राइटी भी देख चुके हैं। तो हम जितना होप लोगों को दे सकते हैं, हमको देना चाहिए, रुकना नहीं Mm. चाहिए। सो आई एम होपफुल द वे वी आर वर्किंग फॉर पीपल, आई एम होपफुल द वे वी आर वर्किंग फॉर पीपल, एंड आई होप अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस कम फॉरवर्ड and take care of this community because they need help. They don't know which door to knock, they don't know where to go. And if a loved one can't help them on their own, they can come to me, call me, I can teach them, train them how to go about it. One solution might work one day, the same solution might not be applicable for other or the next day. I'll give you another one. I have a bag Mhm. full of that, and let me help you as much as I can. ओके, वंडरफुल। एंड जाते-जाते वंदना हमें ये बताइए कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद अनाता ह्यूमन यूनिवर्सिटी? So I have a helpline number which I take care of it. It's 9967334000. Or my email ID is vandana@anatta, which is ANATTA.in. You can contact me at any point of time and I'll revert back as soon as I can. And remember, my friends, help is available. Just grab Mhm. it. Yes, yes. Okay. Thank you so much, Vandana, for giving your time to Little Fixes, for helping a lot of people. I'm sure कि जो भी इसको सुन रहा है
और वो किसी को जानता है जो इस कंडीशन में है, या वो खुद शायद स्लिप हो रहे हैं, तो दिस कॉन्वर्सेशन, दिस एपिसोड विल हेल्प देम, सो थैंक यू सो मच। I'm so sure. And the work that you are doing, Maitri, with your team, Little Fixes podcast, मैंने आपके बहुत सारे रील्स फॉर्मेट में देखे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। अलग अलग एरिया से आप लोगों को, पर्सनालिटीज़ को इनवाइट कर रही हैं जो उनका फोटे है, and then you're हम्म। letting the whole public know what can they provide for the life or the society as a whole to be better. Hats off to you. Keep doing the work that you are offering, and thank you so much for inviting me. Appreciate it.